ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشن ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جسے دیکھنے سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے۔ آج کی جو کہانی ہے ایسی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آصف شدائی ایک محفل میں تھے، ان کے ساتھ ایک دوست تھا، مختلف لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو جب ایک ساتھی کو یہ پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے تو اس نے کہا کہ میں کتے کے ساتھ کھا سکتا ہوں لیکن کسی قادیانی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہی بات ان کے دل میں گھر کر گئی تو انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، اور وہ تحقیق 17 سالہ محیط عرصے پر گزری اور 17 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 18 کے اندر اپنا نام لے کر اس نے کہا کہ میں محمد اور رسول ہوں اور مجھ پر قرآنی وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بات کہی، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 362 یہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی تھی، مگر ابراہیم احمدیہ جو اس نے کتاب لکھی حصہ صاحب کا، یعنی یہ میرے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی کہ کسی کتاب میں ایسا ہے کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس نے اپنا نام کہیں لگایا ہو، کیا کوئی ایسی کتاب ہے؟ جناب یہ عقائد محمودیہ کے اندر ہے، لاہوری فرقے کا جو جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ لاہوری محمد علی لاہوری جب قادیانی جماعت کا پہلا خلیفہ بنا کو تو ان کے آپس میں انتشار پیدا ہوئے، تو اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے عقائد محمودیہ، یعنی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود احمد کا جو ان کا خلیفہ ثانی تھا، اس کے جو عقائد تھے، جب اس نے عقائد کا لکھا ہے تو عقائد تھے نا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ۔ مرزا قادیانی کا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی تھا، تو کیا کوئی قادیانی مجھے جواب دے گا؟ یہ لکھیں، یہ 70 نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ قرآن اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لے آئے، اور یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے، مگر ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لے آئے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آ جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JK نیوز اور میں ہوں حاکم زبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشن ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جسے دیکھنے سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے۔ آج کی جو کہانی ہے ایسی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آصف شدائی ایک محفل میں تھے، ان کے ساتھ ایک دوست تھا، مختلف لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو جب ایک ساتھی کو یہ پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے تو اس نے کہا کہ میں کتے کے ساتھ کھا سکتا ہوں لیکن کسی قادیانی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہی بات ان کے دل میں گھر کر گئی تو انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، اور وہ تحقیق 17 سالہ محیط عرصے پر گزری اور 17 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ تحقیق جو انہوں نے کی وہ قادیانی اور مذہب اسلام کے درمیان کی۔ آج یہ قادیانیت کے حوالے سے بہت سے پردوں سے، بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھائیں گے، ان سے جانیں گے کہ کون سے راز ہیں۔ آخر کار عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی کتابیں ان کے پاس ہیں، سینکڑوں کتابوں کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے جو یہ ربوہ سے لے کر آئے ہیں۔ آصف شدائی صاحب آپ 5 نسلوں سے قادیانی تھے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں کتے کے ساتھ کھا سکتا ہوں لیکن کسی قادیانی کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ تحقیق کی 17 سال۔ تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بظاہر اقرار کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ بتائیں کہ وہ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ AJ کے والے جتنے ممبران آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، قادیانی فتنہ ہے، قادیانیت کا مذہب اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ، سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ مرزا قادیانی پر وحی کون لاتا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور وہ کہتا تھا قرآنی آیات مبارکہ مجھ پر نازل ہوئی۔ دیکھیں سورۃ الفاتح آیت نمبر 28، محمد رسول اللہ والذین اشہد الکفار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا نام آیا ہے اس قرآنی آیت کے اندر، لیکن مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 18 کے اندر اپنا نام لے کر اس نے کہا کہ میں محمد اور رسول ہوں اور مجھ پر قرآنی وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بات کہی، روحانی خزائن
जिल्द 21 सफ़ा नंबर 362 ये किताब है जो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के बारे में आयत नाजुल हुई। या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ी का इलैया, ये कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में नाजुल हुई थी, मगर अब्राहम ने अहमदिया जो इसने किताब लिखी हिस्सा साहब का, यानी ये मेरे हक़ में नाजुल हुई। तो कुरानी आयात मुबारक इस पर कैसे नाजुल हो गई? सबसे पहली बात यह कि ये धोखा देने के लिए, असल में मरज़इयों को खुद पता नहीं कि हम कलमा तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ज़कात चंदू की शक्ल में देते हैं, लेकिन जो इनके अंदर, जैसे ये हमारा मुसलमानों का अकीदा है, हमारा वो अकीदा है जो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रवायात मुबारक में पेश किया कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की कसम उठाई, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान होगी। उस वक़्त आपका क्या हाल होगा जिस वक़्त ईसा इब्न मरियम आप में नाजुल होंगे। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, तो जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ना माने तो सूरत निसा आयत नंबर 65 में है, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम वो मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकम ना बनाए, और जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों से मान लें और जी से रुकावट ना पाएँ। देखें, बानी जमात अहमदिया ने ये कुरानी आयत का इनकार करके उसने कुरान अपनी रूहानी खजान जिल्द 19 में लिखा, अगर मेरा नाम ईसा यानी कि इब्न मरियम नहीं तो मैं झूठा, यानी कि कुरान का जिक्र किया, अगर कुरान में मेरा नाम इब्न मरियम नहीं तो मैं झूठा। अल्हम्दुलिल्लाह वह झूठा है। उसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी इब्न चिराग बीबी, बाप का नाम है गुलाम मर्तज़ा, कौम का वो मुगल था, बरलास ख़ानदान से तल्लक था। सीरत महदी के अंदर 1530 से लेकर आज तक शजरा नस्ब मौजूद है। अगर किसी को शक हो तो देखें, अल्लाह की कुरान का इनकार किया इसने तकरीबन 1500 आयत करीमा का। आप कादियानी ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि कुरानी आयत का कैसे इनकार कर दिया। देखें, जब ये वही कौन लाता था, कुरानी वही के अंदर वमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम यूक़िनून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हुआ। उससे पहले किताबों का जिक्र है कुरान में 86 आयतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने इनकार किया और कुफ्र किया। इसने अल्लाह के कुरान का इनकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का इनकार किया। रूहानी खजान जिल्द 22 में जिक्र है कि मैं उस चीज़ पर, यानी कि अपनी किताबों पर इसने कहा जो मुझ पर वही आती थी उस पर ईमान लाता हूँ जैसे कुरान पर। तो देखें, इसका टची टचे फरिश्ता था, खराती था, दर्शनी था, हाफिज था, इसका इसके साथ तल्लुक़ क्या है? अच्छा आसिफ साहब, क्या किसी किताब का कादियानियों की किसी किताब में ऐसा है कि जहाँ पे ये लिखा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो इसने अपना नाम कहीं लगाया हो? क्या कोई ऐसी किताब है? जनाब, ये अकायद महमूदिया के अंदर है। लोहरी फ़िरके का जो जमात अहमदिया के साथ उसका तल्लुक़ था, लोहरी मोहम्मद अली लोहरी जब कादियानी जमात का पहला खलीफा बना को तो इनके आपस में इंतशार पैदा हुए, तो उसने उस किताब के अंदर लिखा है अकायद महमूदिया, यानी मिर्ज़ा कादियानी के बेटे मिर्ज़ा महमूद अहमद का जो इनका खलीफा सानी था उसके जो अकायद थे, जब उसने अकायद का लिखा है तो अकायद थे ना, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह गुलाम अहमद रसूलुल्लाह। तो देखें, ये दजल व फरेब नहीं तो और क्या है। यानी कि ये किताब मौजूद है? जी मौजूद है किताब। कलमतुल फसल के अंदर इसने जो है ना लिखा है कि किसी ने बंदे ने कहा इसके बेटे को, मिर्ज़ा महमूद अहमद को, कि आप का नबी आया है तो उसके लिए कलमा भी अलग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नए कलमे की ज़रूरत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक, मैं अगर कुछ और कहूँ। इसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। देखें, ये किताब है, इसके अंदर ये सबील अल अरशाद है, ये चेक कर लें आप अगर किसी बंदे को शक हो। इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़िंदा होकर दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। मुझे वो कादियानी ज़ुर्रियत बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दोबारा ज़िंदा होकर तशरीफ़ ले आए। ये देखें, ये सफ़े पर लिखा हुआ है। और वो कहता है तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मिर्ज़ा कादियानी का वजूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद एक ही था। तो क्या कोई कादियानी मुझे जवाब देगा? ये लिखें, ये 70 नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है। बल्कि कुरानी इस्तिलाह में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़िंदा होकर तशरीफ़ ले आए। और ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है, मगर साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती है कि क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़िंदा होकर तशरीफ़ ले आए हैं, तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दोबारा ज़िंदा होकर दुनिया में आ जाना चाहिए। अभी मिर्ज़ा कादियानी की जो
ज़ुर्रियत है तो बस तखवार लाओ। वो ये बात कहती है कि हम इसके सहाबा हैं। अगर किसी बंदे को शक हो कि नदेरी के अंदर तोड़ल्ला के मकाम पर कब्रें हैं दो, उस पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं इस पर दोबारा आऊँगा। कुछ बहुत सी बातें अवाम के अंदर बाज़ का वो जब आप बैठते हैं तो वो पाई जाती हैं। मैं आप क्योंकि 5 नस्लों से कादियानी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, वो आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपका इसमें मताला भी है। पहली बात ये कि थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी पर आते हैं कि जब आप मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल करने वाले थे, तो उस वक्त आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? यानी आपकी वालदा, आपके भाई, उन्होंने आपसे क्या कहा? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस वक्त मैंने ये जो मिर्ज़ा कादियानी ये फितना है, जो इसके साथ मुंसलिक हैं वो एक फितने के अंदर दाखिल हैं। देखें, हमारे लिए हुज्जत कुरान और हदीस है। मैंने जिस वक्त अल्लाह के कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक की रहनुमाई ली तो मुझे फितना कादियानियत के अंदर दजल और फरेब नज़र आया। तो मैंने 17 साल 3 माह 27 दिन अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक और मलहून कादियानी लानती शैतान की कुतब का बागौर मताला करके 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया और 26 मार्च मेरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक मेरी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसला कैसे बना? मैं एक जगह पत्थर तोड़ रहा था, वहाँ पर मेरी एक कादियानी रिश्ते में फुफ्फी लगती है, उसने मुझे नाजेबा किस्म के अल्फाज कहे। पहले तो मेरा दिल करता था मैं उसके सर में हैमर मारूं, लेकिन मुझे अल्लाह का कुरान नज़र आया कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर के अंदर वो लोग कहते थे ये मजनू है, तो ये शायर है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र किया कि ना आप शायर हैं। तो जब मेरी निस्बत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई तो इन्होंने हमें धोखा देने के लिए ये काम शुरू कर दिया। मेरे घर वालों को कहा कि इसको बताएं ये वापस आ जाए, तो जिस मुल्क में ये कहेगा उसके अंदर ले जाएंगे। मैंने कहा मैंने जाना ही मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू। यानी कि आपको दोबारा कादियानियत की तरफ आने पर इन्होंने यूरोप या किसी मुल्क की पेशकश भी की थी? जी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है आज भी इनको जलन हो रही है। ये अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नूर हक शम्मा को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा मिटा सकता है कौन। ये मिर्ज़ा की कुतब क्यों नहीं पढ़ते? आप किसी गरीब आदमी के पास चले जाएं, उसको कहें मुझे कुरान चाहिए, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान चाहिए, वो खुश होगा कि मुझे अल्लाह के कुरान की बारे में कहा कि मुझे चाहिए ताकि मुझे सवाब मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक चाहिए। ये तो फितना कादियानी तो अपनी जमात को कुतब नहीं देती। तो असब जब आपकी वालदा को पता चला इस चीज़ का कि आप मज़हब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखें, जिस वक्त मैंने इस्लाम कबूल करने लगा तो मैं अपनी वालदा के पास गया। मैंने कहा अम्मी मैंने इस्लाम कबूल करना है और मुसलमान होना है। मुझे पूछा आप पहले कौन थे? मैंने कहा ज़रूर कुरान काफिर, बल्कि काफिर से भी बदतर। मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी ने 1500 आयात मुबारका का इनकार करके 32 साल 4 माह में 91 कुतब लिखी, उसकी 11,280 सफ़ात हैं, 2,29,617 हैं। आशिया वगैरह छोड़कर, ये मलफूजात और अश्तहारात छोड़कर उसकी जो उसने तफसीरों का हवाला दिया है वो अपनी कुतब तफसीर उसने अपनी कुतब का हवाला दिया है। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा बेटा आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं वो कह रहा हूँ जो अल्लाह का कुरान कह रहा है। तो कहने लगा, मेरी वालदा ने कहा बेटा ना मैं आपको रोकती हूँ कि आप इधर रहें, ना आपको कहती हूँ कि आप वहाँ जाएँ, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ ही जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया। फिर 25 मार्च को मैंने कुरान मजीद अल्लाह के घर के अंदर 2 उठाए और बरहान अहमदिया जिल्द पंजम यानी रूहानी खजान जिल्द 21 जिसको कहते हैं, उसके अंदर जितने उसने दावे किए हैं जहाँ रख कर मैंने 2 मिंबर शरीफ पर बैठकर अल्लाह का कुरान दानू हाथ पर रखे। मैंने कहा मुख्तसर बात करता हूँ कि जितने मिर्ज़ा कादियानी ने दावे किए अपनी कुतब के अंदर, अगर वो सच्चा है तो अल्लाह मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मौत दे, तो अगर वो झूठा है तो इन कादियानियों को हिदायत दे। तो जिस वक्त मैं घर आया अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के बाद मेरी बीवी ने, मेरे 2 बच्चियों ने और 4 बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात हमने और सुनी है कि मिर्ज़ाइयों को बाकायदा तौर पर फंडिंग दी जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? जनाब ये किताब है सबील अल अरशाद, इसके सफ़ा नंबर 195 पर है। अगरचे मगरबी ममालिक में से अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है जो एक हद तक तबलीग का बोझ उठा रहा है। जहाँ पर 1.5 लाख रुपया खर्च होता है वहाँ 1 लाख रुपया अमेरिका देता है। ये जुलाई 1940 में
किताब शाया हुई, आज के दौर का ये कैलकुलेशन करें, आपको खुद पता चल जाएगा। यानी कि 1940 में ये दावा किया गया जी, था। तो बिल्कुल। अगली बात यह है कि क्या जो कादियानी आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में होते हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर माहाना या सालाना फंडिंग की जाती है? जी बिल्कुल करते हैं ये जमात। आपको कभी की फंडिंग? जी मैंने तो एप्लीकेशन दी नहीं, तो ना अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं जाकर इनसे मांगूं। मैं तो जब मांगता हूं तो अपने रब से मांगता हूं। जब कादियानी था तो मुझे अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दे दी। देखें, इनको वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है सदर और अमीर को, तो ये जाकर वहाँ पर ये काम करते हैं कि चंदे वगैरह देते हैं इनकी जमात तबलीग के मामलात में, और ये जो यहूद व नसारा हैं इनको पैसे फंडिंग करते हैं। यानी माहाना फंडिंग जो लोग यतीम, बेरोजगार या बेवा या माजूर होते हैं उन्हें फंडिंग होती है? जी नहीं, माजूर या इस तरह के मामलात नहीं, ये चेहरा देख कर देते हैं। अभी कम अज़ कम हमारे इलाके के अंदर ये हमने ख़त्म नबूवत के कुछ बंदों ने हमारे इलाके में कुछ बोर करवाए, तो मैंने भी अपना चश्मा करवाया, तो यहाँ से कितने कादियानियों ने अपनी जमात को जो है ना दिया, एप्लीकेशन दी और उन्होंने बोर करवाए। ऐसे ही ये अपनी जमात को बताते हैं, तो जमात इनको चंदा देती है, इनको पैसे देती है। देखें, अब कि अमेरिका देता तो आप पीछे कौन सी बात रह गई। एक चीज़ मैंने और सुनी है कि एक जगह का नाम है रबवा, कि जिन लोगों की तदफीन यहाँ होती है उनकी कब्रें वहाँ बनाई जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इनका बेशती मकबरा रबवा है। असल में मसला ये है कि बेशती मकबरा पहले कादियान था, 75 मुल्कों में इनकी बेशती मकबरे हैं। तो बेशत कहते हैं जन्नत को, मरज़इयों की जन्नत जो है ना, यहाँ गाँव में भी एक कब्र, दूसरी कब्र रबवा में, कादियान में, और भी काफ़ी मुल्क हैं। ये जो है ना रसाला, ये इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये बेशती मकबरा रबवे के चंद मनाजर ये सामने है। हमने तो इस्लाम कबूल किया मिर्ज़ा कादियानी के दजल व फरेब की कहानी पढ़कर। यानी जो लोग फर्ज करें गोई में यहाँ दफन कादियानी होता है, उसका मकबरा उधर भी बनाया जाता है? जी, उसकी कब्र वहाँ गोई के अंदर ओरिजिनल बंदे की डेड बॉडी है, वहाँ पर भी कुतबा लगाया जाता है। अगर किसी को शक हो तो मिर्ज़ा ताहिर की कब्र जो है ना लंदन के अंदर है, लेकिन रबवा के अंदर भी उसकी कब्र बनाई गई है। ये दजल व फरेब नहीं तो और क्या है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें लिखी? जनाब 1876 में पहली किताब लिखी और 1908 में आखिरी किताब लिखी, कुल 91 कुतब लिखी। यानी 91 किताबें उसने तहरीर। जी बिल्कुल। एक आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने आपसे एक बहुत बड़ा काम लिया। आपके साथ 3 साथी थे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में आपने मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार देने की रिट दायर की थी। ये अल्लाह ताला ने आपसे बड़ा काम लिया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने दीन मुस्तफ़ा के दुश्मनों के लिए सी सप्लाई हुई दीवार बनने की कोशिश की, और अल्लाह ताला मुझे हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है हम पर। आपके साथ 3 शख्सियात कौन थी? जनाब एक हमारे थे मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज़ाद कश्मीर के सदर, राजा आसिफ रात साहब और चौधरी अनवर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुन रहे थे आप मोहम्मद आसिफ शिदाई साहब की। इन्होंने आज मरज़ाइयत के बहुत से पर्दों को चाक किया, लेकिन दूसरी तरफ 17 साल इन्होंने तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुसलमान हुए। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इल्म नहीं होता, वो कादियानियत मरज़ाइयत को समझते नहीं हैं, वो अपने बाप दादा की चीज़ को फॉलो करते हुए मज़हब इस्लाम से दूर रहते हैं। किताबें इनके पास मौजूद हैं। इन्होंने रबवा से ये किताबें लाई थी। अगर किसी को कोई शक है किसी कादियानी को तो वो इनसे किताबें लेकर मताला करे और मज़हब इस्लाम दोबारा मज़हब इस्लाम की तरफ आए। इसी के साथ मेरे मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल और जे के न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान।